Hello everyone. In the last video lecture we talk about some inverse Laplace formulas and some example based on the starting formulas. So today over here we will discuss inverse Laplace transform of some function by using the partial fraction. So the very first example is you have to find Laplace inverse of s upon s plus 1 whole square upon into s square plus 1. So you remember that as in the your senior secondary class you have already studied how to take the partial fraction. In the integration chapter you have already studied. And if you have to find out the partial fraction, then that will be is s upon, this is s plus 1 whole square. If whole square is there, so we will starting from the power 1, so it will be a upon s plus 1 power 1 plus b upon s plus 1 power 2. if there is s plus 1 power 3, so next क्या होता है आपका प्लस c अपॉन s plus 1 power 3. ओके, तो यहाँ पर s plus 1 power 2 तक है, so we will go up to b. Then there is a quadratic. Okay, if there is a quadratic fraction, so you will say that it will be cs plus d divided by s square plus 1. जितने यहाँ पर पावर की पोलिनोमियल होगी उससे एक कम पावर की पोलिनोमियल आप न्यूमिनेटर में लिखोगे. ओके, अगर ये पावर 2 की है, सो इट विल बी इन द न्यूमिनेटर वी विल राइट इट डाउन सी एस प्लस डी. अगर ये क्यूब पावर की होती है आपकी, सो यू विल राइट डाउन हियर सी एस स्क्वायर प्लस डी एस प्लस ई, तब आप ऐसे लिखते हैं. ओके, सो दैट विल बी द partial fraction. That means this part, that left hand side can be written like this one. Okay, now what is the main goal? You have to find out this value e b c and d. These are the unknowns. You have to find out this value. अगर ये आपके अननोन निकल जाते हैं तब आप कहोगे हमें इसका लाप्लास इनवर्स निकालना था. सो इन द लास्ट वी विल से द लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस विल बी इक्वल टू द लाप्लास इनवर्स ऑफ राइट हैंड साइड, which will be very easy to find out. Okay, so first of all we find out the value of a b c d. So look at here how to find out. So what you have to do over here, very first step, you know what we will do, just multiply both side by जो आपका ये डिनोमिनेटर में लेफ्ट साइड में उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए थ्रू आउट द इक्वेशन. ओके, सो व्हेन वी मल्टीप्लाई, तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे लेफ्ट साइड में s प्लस 1 होल स्क्वायर से इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 से, तो यू विल लेफ्ट ओनली विद s. राइट हैंड साइड में जब a के साथ a अपॉन एस प्लस 1 के साथ इसे मल्टीप्लाई करोगे तो एक पावर तो आपकी कैंसिल हो जाएगी एस प्लस 1 की, एक पावर बचेगी और इंटू में क्या बचेगा एस स्क्वायर प्लस 1. ओके, जब b के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो b के साथ s प्लस 1 की दोनों पावर कट जाएगी, क्या बचेगा केवल एस स्क्वायर प्लस 1. ओके, जब सी एस प्लस डी के साथ करोगे तब आपकी एस स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा एस प्लस 1 होल स्क्वायर. ओके, इन दिस वे यू विल गेट. So very first step you have to multiply the term with, multiply the equation with s plus 1 whole square into s square plus 1. So you will get this one. Okay, so now just by comparing you have to find out the value of a b c d. Okay, so इससे एक easy step है, for this you can do it. अगर मैं s plus 1 को 0 पुट कर दूँ तो यहाँ पे s plus 1 को 0 पुट करोगे तो आपका s की वैल्यू क्या आएगी, s प्लस 1 को 0 पुट करोगे तो s की वैल्यू आएगी -1. तो अगर s को -1 पुट करते हैं तो ये 0, क्योंकि इसमें s प्लस 1 है, एंड ये 0 क्योंकि यहाँ पे भी s प्लस 1 है, केवल ये बचेगा. s की वैल्यू -1 है तो क्या आ जाएगा b इंटू 2 इक्वल टू -1. तो यहाँ से आगे b इंटू 2 इक्वल टू -1, सो 2b इक्वल टू -1, b की वैल्यू आ गई -1/2. राइट, सो यू विल गेट. नाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ द b. सो व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट, just comparing the coefficient of s cube, s square and constant terms we will compare. So for this what you have to do, just you open these brackets, that means you have to just simplify it. That will be a into s plus 1 and just open that s square plus 1. Okay, when you do it multiplication, so s के आप s के plus 1 से multiply करोगे you will get that s cube plus s. Then with 1 you will multiply, you will get that s square plus 1. So a into that bracket will be there. Similarly plus b into s square plus 1. Similarly plus cs plus d into s plus 1 whole square will be opened there.
So when you will simplify it, so what you have to do, multiply a b c d inside the bracket. So when you get multiplied, so after that you have to collect the terms with s cube and collect the terms with s square. सो जो एस क्यूब का कोफिशिएंट्स होगा उसे कलेक्ट कर लीजिए. जब एस क्यूब का कोफिशिएंट हम राइट साइड में कलेक्ट करेंगे, सो यू विल सी देयर कोफिशिएंट ऑफ एस क्यूब विल बी ए प्लस सी. लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में आपका एस क्यूब की कोई टर्म नहीं है, सो विल से दैट लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है, जीरो इंटू एस क्यूब है एक तरह से. तो एस क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, लेफ्ट साइड में जीरो, सो इट विल बी जीरो. सिमिलरली राइट हैंड साइड से एस स्क्वायर के कोफिशिएंट इकट्ठे करो, एस स्क्वायर के कोफिशिएंट आएंगे ए प्लस बी प्लस टू सी प्लस डी. लेकिन लेफ्ट साइड में तो एस स्क्वायर की टर्म नहीं है, तो प्लस में क्या लिख सकता हूँ, जीरो इंटू एस स्क्वायर. तो यहाँ से एस स्क्वायर का ऑप्शन क्या हुआ, जीरो, तो ये आ गया, दैट विल बी इक्वल टू जीरो. फिर राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म इकट्ठी करोगे, कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट्स आएगा ए प्लस बी प्लस डी. लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में आपका कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो मैं प्लस में क्या लिख सकता हूँ, प्लस में जीरो, राइट, जिसमें कोई एस नहीं है. सो दैट विल बी इक्वल टू जीरो. सो इन दिस वे आपके पास ए बी सी डी में इक्वेशंस आएगी, राइट. So now what you have to do, just you have to simplify these equations and you have to find the value of the a, c and d, because we have already have b. Okay, so place the value. So when will you place the value, so यहाँ पर b है, तो b की वैल्यू तो मेरे पास है -1/2, you just place it over here. So b की वैल्यू जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे, you will get a plus 2c plus d equal to 1/2. b की वैल्यू यहाँ पर भी पुट करो, तो a plus d equal to 1/2. तो आपके पास इक्वेशंस आ गई. ओके, एंड व्हेन यू हैव दिस वन, सो यू कैन चेक इट ओवर हियर. ए प्लस डी है यहाँ पर, और ये ए प्लस डी रहा, तो ए प्लस डी की वैल्यू आपकी क्या है, 1/2. तो अगर मैं लेफ्ट साइड में यहाँ पर इस इक्वेशन में ए प्लस डी की वैल्यू ये वाली रखता हूँ, तो ए प्लस डी की जगह आ गया 1/2 और बचा गया आपका 2c, और इक्वल में क्या है 1/2. तो 1/2 माइनस 1/2 क्या हो गया, जीरो. सो 2c इक्वल टू जीरो, यहाँ से क्या आ गया, c इक्वल टू जीरो. तो हमारा c जीरो आ चुका है. ओके, अब अगर c की वैल्यू अगर हम रखते हैं, तो हमारे पास एक इक्वेशन और है, पर यू कैन चेक इट ओवर हियर. दिस इज a प्लस सी इक्वल टू जीरो. सो अगर c की वैल्यू जीरो आ चुकी है, तो यहाँ से आप लिखोगे a प्लस जीरो इक्वल टू जीरो. सो यहाँ से a की वैल्यू भी क्या आ गई, जीरो. तो a भी जीरो आ गया आपका, c भी जीरो आ गया, राइट. अब केवल आपके पास d रहता है. ओके, अब ये वाली इक्वेशन देखिए आप, इस इक्वेशन में a की वैल्यू भी जीरो है, c की वैल्यू भी जीरो है, तो d केवल d बचा, d इक्वल टू क्या आ गया, 1/2, राइट. तो मेरे पास d की वैल्यू भी आ गई, और b आपके पास पहले ही आ चुका था -1/2. दैट मीन्स वी गॉट द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी. अब ये ए बी सी डी की वैल्यू उठाकर हमें कहाँ पे रखनी है, जो हमने स्टार्टिंग में पार्शियल फ्रैक्शन किए थे, ओवर हियर. ओके, तो यहाँ आपको वैल्यू रखनी है. तो आपके पास a जीरो आया, ये टर्म बचेगी नहीं. b की वैल्यू -1/2 आई है. c जीरो आया है, तो यहाँ पर ये सी एस नहीं बचेगा, केवल बचेगा 1/2 अपॉन एस के प्लस वन, और यहाँ बचेगा -1/2 अपॉन एस प्लस वन होल स्क्वायर, राइट. तो जब a b c d की वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे, सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू यू विल गेट दिस वन, दिस विल बी इक्वल टू माइनस, राइट, दिस वन. तो हमें लाप्लास इनवर्स निकालना है इसका. सो यू टेक द लाप्लास इनवर्स बोथ साइड. सो यू विल राइट डाउन देयर inverse Laplace transform taken both side, we get this one, that will be equal to Laplace inverse of this one. And you know that when you take the Laplace inverse of these two terms, so Laplace inverse is linear, so it will be Laplace inverse of the first function plus Laplace inverse of the second function. So you will say that Laplace inverse first function plus inverse of second function. But -1/2 is constant, so we taken outside. Here 1/2 is constant, so we taken outside, and remaining you have to find our Laplace inverse. So how to find the Laplace inverse? We have already discussed the formulas. Laplace inverse of 1 upon s plus 1 whole square. इससे फिलहाल में s plus 1 मत सोचो, ये सोचो s है. So 1 upon s square का Laplace inverse क्या होता है आपके पास? So it is 1 upon s raised to n plus 1 होता है, उसका Laplace inverse क्या होता है आपके पास? जितनी पावर s की है उससे एक कम करके t की पावर होगी. सो t की पावर आएगी 2 - 1, दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय जितनी पावर t की है उतना फैक्टोरियल डिवाइड में रहेगा, डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल. ओके, या फिर इस तरीके से भी कह सकते हो कि t की पावर एक कम करके 1 डिवाइड बाय गामा 2.
लेकिन गामा 2 का मीनिंग क्या है 1 फैक्टोरियल, तो इसलिए ये लिखो दैट इज सेम, राइट। सो ये तो बन गया आपका टी की पावर 1/1 फैक्टोरियल, लेकिन एस की जगह क्या है s+1, यानी कि s माइनस माइनस वन, s+1 का मीनिंग है s माइनस माइनस वन, इसका होल स्क्वायर है, राइट। तो हमें पता है जब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं तो s की जगह जो लिखा हुआ है s माइनस जो टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है दैट इज ई रेज़ टू पावर माइनस टी का कोफिशिएंट हो जाएगा वो, ओके। सो टी का कोफिशिएंट क्या हो गया -1, सो हमने ये लिखा है, ये तो बन गया टी इंटू में ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाय यूजिंग द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, राइट। एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस 1² क्या बनेगा साइन टी, सो इसका, सो इस तरीके से लाप्लास इनवर्स हमने फाइंड आउट किया। कम टू द नेक्स्ट वन, दिस इज आल्सो क्वेश्चन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। लाप्लास इनवर्स हमें इसका फाइंड आउट करना है, सो पहले हम ये टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, इसके पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं। सो इट इज s² प्लस s डिवाइडेड बाई s² प्लस 1 इंटू s² प्लस 2s प्लस 2। सो वट इज दिस वन, हाउ टू फाइंड आउट, एज वी हैव डिस्कस्ड अबव, व्हेन देयर इज ए क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो इसका नोमिनेटर पार्ट हम क्या लेकर चलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल लेकर चलेंगे। सो विल से दैट लीनियर पोलिनोमियल जिसके कोफिशिएंट्स अननोन हो गए। सो s² + 1 के लिए क्वाड्रेटिक है तो इसका लीनियर लिखेंगे as प्लस बी डिवाइड बाई s²+1। ये भी क्वाड्रेटिक है तो इसके लिए a और b तो यूज कर लिया, c और d ले लीजिए, cs प्लस डी डिवाइड बाई s² प्लस 2s प्लस 2। वट इज द नेक्स्ट स्टेप, जो यहाँ पर लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में टर्म है इससे मल्टीप्लाई करना है पूरी इक्वेशन को। जब पूरी इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, सो आपके पास मिलेगा दिस वन, ओके, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट, जो ये ब्रैकेट्स हैं इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, you do it by your own, take your notebook and do it simplify, and you observe there we will collect the terms of s cube, s square, s and the constant terms means without s। so राइट हैंड साइड में हम कलेक्ट करेंगे, तो आपकी जो s क्यूब वाली टर्म्स है उसका जो कोफिशिएंट्स है वो कलेक्ट करो। तो s क्यूब की टर्म का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास यहाँ पर a प्लस सी आएगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में s क्यूब की कोई टर्म नहीं है, लेकिन s क्यूब की टर्म को मैं लिख सकता हूँ 0 इंटू एस क्यूब, तो इसका मीनिंग है यहाँ पर s क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 0, तो लिखोगे 0। फिर राइट हैंड साइड से s² का कोफिशिएंट देखो क्या आएगा, इसी तरीके से s² का जो कोफिशिएंट्स आएगा वो आपका सोल्व करके आया 2a प्लस बी प्लस डी, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में s² का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये 1 आ गया। फिर s का कोफिशिएंट देखो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, जो आपने सोल्व किया है उस पर आएगा 2a प्लस 2b प्लस सी, लेफ्ट हैंड साइड में s का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पे लिखा है 1, ओके। फिर राइट साइड में देखो बिना s के जो क्या है कांस्टेंट टर्म्स बची है उसका वो क्या है मेरी 2b प्लस डी बची है, लेकिन लेफ्ट साइड में तो मेरा कांस्टेंट है ही नहीं, तो दैट मीन्स प्लस में मेरा एक तरह से 0 है, ओके। सो दैट विल बी कांस्टेंट इक्वल टू 0, राइट। सो वी हैव द इक्वेशंस, ये 4 इक्वेशंस आ गई आपके पास। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशंस यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है हमने। तो फ्रॉम हियर यू कैन चेक व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ से अगर मैं डी की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो हमने डी की वैल्यू निकाली क्या आ गई -2b, तो ये जो डी की वैल्यू है और यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लीजिए, सी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, यू विल से दैट सी विल बी इक्वल टू -a, सी की वैल्यू -a आ गई और डी की वैल्यू क्या आ गई -2b, ये दोनों वैल्यू उठाकर सी सर यहाँ डी की रख देते हैं हम, जब डी की वैल्यू मैं यहाँ पर रखूँगा तो ये क्या बनेगा 2a माइनस बी इक्वल टू 1, तो ये आ गई इक्वेशन देखिए। और जब ये c की वैल्यू क्या है -a, c की वैल्यू मैं यहाँ पर रखूँगा तो ये क्या बनेगा, ये इक्वेशन बन जाएगी a प्लस 2b इक्वल टू 1, तो ये देखिए ये बन गई, ओके। तो हमने क्या करना था, किसी दो अननोन्स में इक्वेशंस बनाने, तो हमारे पास a और b में दो इक्वेशंस आ गई, अब इन्हें सॉल्व करके आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हो, ओके। जब a की वैल्यू और b की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी इसमें, तो a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, उसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो c की वैल्यू आ जाएगी, और b की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो हमारी d की वैल्यू आ जाएगी, इस तरीके से हमारी 4 वैल्यू आ जाएगी। सो यू solve it, when you will solve it you just do it solve, so what you have to do, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, तो हमारा क्या बनेगा राइट में 4a प्लस 2b और लेफ्ट में क्या बनेगा 2, तो जब इन्हें मैं ऐड करूँगा सॉरी माइनस, दैट विल माइनस साइन,
ये माइनस साइन है यहाँ पर, तो अगर माइनस साइन है तो ये वाली इक्वेशन और इस इक्वेशन को जब मैं ऐड करूँगा तो ये टू बी कट जाएगा, तो आ जाएगा 5a इक्वल टू 3 जब ऐड करूँगा तो 5a इक्वल टू 3। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 3/5, तो यहाँ पे a की वैल्यू देखिए 3/5 आ गई। इसी तरीके से a की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, a की वैल्यू या तो यहाँ पर रख दो या ऊपर वाले इक्वेशन में। जब a की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो 1 इक्वल टू 3/5 इक्वल टू 2b, ओके sorry plus 2b. So what it will be 1 minus 3/5, so it will be, you can say that it will be 2/5, so 2/5 equal to 2b, so b की वैल्यू आ गई 1/5, so यहाँ पे चेक कर सकते हो b की वैल्यू 1/5 और a की वैल्यू 3/5 आ गई। a और b की वैल्यू आ गई है, तो a और b की वैल्यू मैं कहाँ पर पुट करूँगा, अभी हमने ऊपर देखा था कि हमारे पास क्या आया था, c की वैल्यू आई थी -a, तो a को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो c की वैल्यू आ गई है -3/5, और d की वैल्यू आई थी -2b, तो b को -2 से मल्टीप्लाई करो -2/5 हो जाएगी, तो d की वैल्यू -2/5। तो a b c d हमारे पास चारों वैल्यू आ गई हैं। इन चारों वैल्यू को उठाकर हमने कहाँ रखना है, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी जहाँ पर हमने पार्शियल फ्रैक्शन किए थे ये, तो यहाँ पर a b c d की वैल्यू पुट कर दीजिए। सो ये टर्म क्या आ जाएगी, इसके इक्वल आ जाएगी जहाँ पर हमने a b c d की वैल्यू पुट की है। सो आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू वी विल गेट दिस वन, सो ओवर हियर यू कैन चेक that term will be equal to this one, right? अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, you have to find out the Laplace inverse of this term. So you will say, you will write down there taking inverse Laplace transform both side. So you get Laplace inverse of this will be equal to what, Laplace inverse of this term, ये पूरी टर्म जो बचेगी राइट हैंड साइड में। जब राइट हैंड साइड का लाप्लास इन्वर्स लोगे तो हमारे पास दो टर्म्स है, लेकिन लाप्लास इन्वर्स लीनियर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, सो यू विल से दैट लाप्लास इन्वर्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लाप्लास इन्वर्स ऑफ सेकंड टर्म, राइट? सो यू विल राइट डाउन दिस टर्म, लेकिन फर्स्ट टर्म में हमारा 1/5 ऊपर कॉमन है, सो यू कैन टेकन आउटसाइड। इसी तरीके से राइट हैंड जो हमारी सेकंड टर्म है उसमें 1/5 कॉमन है, -1/5 कॉमन है, सो विल राइट डाउन -1/5 एंड द लाप्लास इन्वर्स ऑफ द रिमेनिंग टर्म, ओके। नाउ when you separate the denominator, you will write down, when you rewrite this term, that can be written like this, Laplace 3s divided by s square plus 1 plus 1 upon s square plus 1, okay। so हमारा क्या होगा, Laplace inverse of 3s divided by s square plus 1 plus Laplace inverse of 1 upon s square plus 1, so 3 मैंने कॉमन लिया, so it will be this one, और जो सेकंड है Laplace inverse of 1 upon s square plus 1 is this। Similarly this one over here, when I check, so what is this, Laplace inverse of this thing I have to write, so there is 3s plus 2, यहाँ पे s plus 1 होल स्क्वायर, so what I say, यहाँ पर अगर मैं +1 -1 करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा 3s plus 3 -1, so 3s plus 3 पहले आ गया, -1 लगा गया, ओके। सो इसे हमने रीराइट करके ये लिखा है, ये हमने किस लिए लिखा है, ताकि 3 कॉमन आकर यहाँ पर s plus 1 बन जाए हमारा, और नीचे भी s plus 1 है, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा, दैट्स वाई, ओके। तो फ्रॉम हियर यू कैन चेक, इसका लाप्लास इन्वर्स क्या होता है cos t, इसका लाप्लास इन्वर्स क्या होता है sin t, सो यू प्लेस द वैल्यू एंड -1/5 राइट टर्म को हमने लिखा है, लाप्लास इन्वर्स ऑफ, ये हमारा आएगा लाप्लास इन्वर्स ऑफ 3s plus 3 अपॉन s plus 1 होल स्क्वायर प्लस 1, ओके, एंड माइनस फिर वही लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन s plus 1 होल स्क्वायर प्लस 1, राइट। सो इट विल बी देयर, बट यहाँ से मेरा 3 कॉमन आ रहा है इस टर्म से, तो हम 3 विल बी टेकन कॉमन, सो लाप्लास इन्वर्स ऑफ s plus 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 s plus 1 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस लाप्लास इन्वर्स ऑफ दिस वन, राइट। सो यू ऑब्जर्व हियर व्हाट इज दिस वन, अगर मैं s सिंपल इसे s कंसिडर करता हूँ, +1 मत सोचो अभी, तो s कंसिडर करता हूँ तो क्या है s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, इसका लाप्लास इन्वर्स क्या होगा cos t, राइट। लेकिन s की जगह क्या है s plus 1, तो इसका मीनिंग है यहाँ पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगी है, e raised to power minus t से मल्टीप्लाई होगा, ओके। सो इट इज cos t और e raised to power minus t से मल्टीप्लाई, राइट। सिमिलरली इन द सेकंड, अगर मैं सेकंड इस टर्म में देखता हूँ तो इस टर्म में हमारे पास क्या है, इसे s सोचो तो 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 है, तो उसका लाप्लास इन्वर्स क्या होगा sin t, लेकिन s की जगह क्या है s plus 1, तो इसकी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगी है इनटू e raised to power minus t विल राइट डाउन, ओके। In this way we will find out the Laplace inverse of the given function, okay। So this is your answer.
Just you simplify it. After simplifying, you will get this one. Okay. So in this way we solve this equation. Now the next one is you have s upon s raised to power 4 plus s square plus 1. This is the function given, and you have to find out the inverse Laplace transform. So first of all, just simplify it. So when I will simplify it, s upon s power plus 1. So power 4 आई है यहाँ पर. Just we try to simplify the denominator. So what I do here, जो s square है, s square coefficient जो सॉरी यहाँ पर s square है, अगर यहाँ पर s square की जगह मेरा 2s square हो, so that means you will get the perfect square, क्योंकि वो बन जाएगा आपका s square square प्लस 1 square प्लस 2s square. तो ये बन जाएगा s square प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा. ओके तो हमें यहाँ पे प्लस एस स्क्वायर और चाहिए, मतलब 2s स्क्वायर है ना यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पर केवल एस स्क्वायर है. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्लस एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर कर देता हूँ. इसी में प्लस एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डिनोमिनेटर में. तो ये क्या बन गया, s4 प्लस ये प्लस एस स्क्वायर को दोनों को इकट्ठा करो 2s स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया, और माइनस एस स्क्वायर को अलग लिख दिया. अब ये फर्स्ट टर्म क्या बन गई हमारी नीचे वाली, ये फर्स्ट टर्म ये बन गया एस स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, इसे लिखा माइनस एस स्क्वायर अलग. ओके अब डिनोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ए क्या है आपका एस स्क्वायर प्लस 1 और बी क्या है एस, राइट, ए प्लस बी ए माइनस बी. अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, राइट. तो जैसे अभी हमने ऊपर किया है, इन द सेम मैनर यू हैव टू डू. तो हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे. इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, नीचे आपका फर्स्ट जो टर्म है वो क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो न्यूमिनेटर में क्या लिखेंगे, लीनियर टर्म ए एस प्लस बी डिवाइड बाई एस के प्लस 1, एस के प्लस एस प्लस 1. सेकेंड टर्म भी क्वाड्रेटिक है, प्लस में क्या लिखेंगे, लीनियर टर्म न्यूमिनेटर में सी एस प्लस डी अपॉन एस के माइनस एस प्लस 1, राइट. सो व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट, जो आपके डिनोमिनेटर में टर्म है लेफ्ट साइड में, उससे मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को. इसे जब मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दिस वन. इन द सेम मैनर यू हैव टू डू. जस्ट इसे सिंप्लीफाई करोगे, टेक योर नोटबुक एंड जस्ट ट्राई टू ओपन इट. when you open it and collect the terms of the same power, so s क्यूब के टर्म्स अलग इकट्ठी कर दीजिए, s स्क्वायर के अलग, s के अलग, एंड कांस्टेंट टर्म्स अलग. so when you observe there, so when you take the s cube common from the s cube term, so what you will get, you will get some coefficient. so collect the compare the coefficient of s cube both side. राइट साइड में s क्यूब का कोफिशिएंट आएगा a प्लस सी, और लेफ्ट में s क्यूब है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट आएगा 0. फिर एस स्क्वायर कोफिशिएंट, राइट में एस स्क्वायर कोफिशिएंट है दिस वन, लेकिन लेफ्ट में एस स्क्वायर है ही नहीं, तो दैट विल बी 0. राइट में एस का कोफिशिएंट आएगा ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी, लेकिन लेफ्ट में एस का कोफिशिएंट क्या है, ये रहा एस का कोफिशिएंट क्या है, केवल 1, सो विल राइट ऑन 1. राइट में कांस्टेंट टर्म क्या आएगी, बी प्लस डी, लेकिन लेफ्ट में तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो इसलिए दैट विल बी इक्वल टू 0. ओके सो इन दिस वे वी विल गेट 4 equations. So you have to just solve these 4 equations, find the value of ABCD की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, then find out the Laplace inverse. Okay, so how to find out this value? So from here a plus c you have. Okay, तो यहाँ पर a plus c की वैल्यू 0 है. अगर मैं a plus c, देखो यहाँ पर है मेरे पास a plus c, तो a plus c यहाँ पर पुट करता हूँ तो क्या बचेगा आपके पास, माइनस बी प्लस a plus c की जगह 0 पुट कर दो तो क्या बचेगा, माइनस बी प्लस डी बचेगा राइट साइड में, और लेफ्ट में क्या है 1. तो ये इक्वेशन आ गई 1 इक्वल टू माइनस बी प्लस डी. अब एक इक्वेशन ये रही बी प्लस डी इक्वल टू 0, और एक आ गई माइनस बी प्लस डी इक्वल टू 1. इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये आंसर कैंसिल हो गया, ऐड करके तो आ गया आपके पास 2d इक्वल टू 1. तो यहाँ से डी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू क्या आ गई है 1/2, राइट. अब हमारे पास डी की वैल्यू आ गई. डी की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ इसमें, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b क्या आ जाएगी माइनस ऑफ d, यानी कि -1/2. तो b भी आ गया, d भी आ गया, राइट. अब आपके पास a और c बचते हैं, राइट. नाउ b और d की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं, b और d की वैल्यू -1/2 प्लस 1/2, तो ये तो कैंसिल हो गए क्योंकि b प्लस डी 0 है. तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस a प्लस सी इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन पहले ही आपके पास a प्लस सी इक्वल टू 0. अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो ये a कट के 2c इक्वल टू 0 आ गया, 2c 0 आ गया तो c 0 आ गया. अगर c की वैल्यू 0 मैं यहाँ पर इक्वेशन में पुट करता हूँ तो यहाँ से आ गया a प्लस 0 इक्वल टू 0, यानी कि a भी 0 आ गया.
तो ए भी जीरो आ गया, सी भी जीरो आ गया, ये दोनों जीरो आ गए और डी और बी की वैल्यू पहले ही आ चुकी है, राइट। तो इन चारों की वैल्यू निकाल कर हम पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो ये इक्वेशन थी आपकी। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद यू विल गेट द टर्म लाइक दिस। So when you put the value, you will get this one after solving. So over here you can check Laplace inverse find out करना हमने लेफ्ट टर्म का. So Laplace inverse of this will be equal to Laplace inverse of the whole term. Okay. So Laplace inverse इसका निकालेंगे तो there are the two terms. So you say that Laplace inverse first one plus Laplace inverse second one. लेकिन फर्स्ट टर्म में आपका -1/2 कॉमन है, टेकन आउटसाइड. 1/2 कांस्टेंट है, टेकन आउटसाइड द स्केलर वन. ओके, राइट. सो व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड, देयर इज 1/s² प्लस s प्लस 1. लेकिन इस क्वाड्रेटिक का हमें लाप्लास इन्वर्स नहीं पता. हमें पता है अगर परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में बना होता 1/s² प्लस सम a², अगर इस टाइप से बनाओ सो हमें पता है. और यहाँ से हम क्या करेंगे, a/s² प्लस a² इस तरीके से लिखा हो तो क्या होगा इसका साइन ऑफ 80, यू नो दैट लाप्लास इन्वर्स. लेकिन यहाँ पे s² प्लस s प्लस 1 है क्वाड्रेटिक, तो पहले से परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे हम. अब आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर हम किस तरीके से बनाएंगे, यू नो हमारे पास टर्म क्या है s² प्लस s प्लस 1. सो पहले हम s देखेंगे, इसका बनाने का मीन तरीका क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर का. पहले s का कोएफिशिएंट 1 देखिए, 1 है, ठीक है. फिर जो आपके पास टर्म है s⁻1 उसका कोएफिशिएंट देखिए क्या है, 1 है. इसको पहले हाफ कीजिए, तो इसका कोएफिशिएंट लिया हमने 1, उसका हाफ कर दिया. फिर उस हाफ का स्क्वायर कीजिए, इस हाफ का स्क्वायर किया तो क्या आ गया आपके पास 1/4. तो यही जो स्क्वायर है 1/4 यही हमने इसमें ऐड करना है और यही हमने सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, जब इसे ऐड करेंगे तो हम तीन टर्म इकट्ठी लेंगे, s² प्लस s प्लस 1/4, ये तो एक साथ ले लो. और बाकी जो दोनों बची हुई है ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इसे अलग ले लो. ओके, तो s² प्लस s प्लस 1/4 को ले लो 1/2², तो क्या बन गया s प्लस 1/2 होल स्क्वायर बन गया ये तीनों टर्म लेकर. और बाकी रिमेनिंग टर्म क्या है 1 - 1/4 को ओपन करोगे तो क्या आएगा, सोल्व करोगे तो 1 - 1/4 दैट विल बी 3/4. सो जब 3/4 को स्क्वायर की फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखोगे, दैट विल बी 1 - 1/4 3/4. सो यू से दैट प्लस 3 को लिख दीजिए √3 और 4 को लिख दीजिए 2, √3/2². ओके, तो आपके पास ये टर्म बन गई हमारे पास s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस √3/2². ओके, सो यही टर्म हमने यहाँ पे लिखी है, इसका जो परफेक्ट स्क्वायर बनाया दिस वन. ओके, सिमिलरली जो राइट हैंड साइड में टर्म है हमारे पास ये सॉरी नेक्स्ट टर्म है हमारी s² माइनस s प्लस 1, इसको भी हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. तो s² माइनस s प्लस 1 है. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, s का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, s का कोएफिशिएंट -1 है, तो पहले इसका हाफ करो फिर उसका स्क्वायर करो, क्या आ गया 1/4. तो वही करना है 1/4 हमने क्या करना है ऐड करना है और 1/4 सब्ट्रैक्ट करना है. तो जब 1/4 ऐड करोगे तो इन तीनों को मिलाकर इनको क्या बनेगा s माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बन गया. और 1 - 1/4 अभी क्या था वो क्या बन गया आपका 3/4. 3/4 को लिख दिया √3/2². तो यहाँ पर चेक कर सकते हो ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर. अब परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद यू कैन चेक दैट यहाँ पर हमारे पास क्या है s प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस √3/2². ये √3/2² है. You suppose that this is √3/2², सॉरी √3/2². तो यहाँ पर a की वैल्यू अगर ऊपर भी होती √3/2 अगर हमारा यहाँ पर भी होता तो हम कह देते √3/2 अपॉन s² प्लस √3/2². तो किसका फार्मूला बनता a/s² प्लस a². तो इसका लाप्लास इन्वर्स क्या होता है आपके पास sin 80, राइट. तो a की जगह हमें क्या चाहिए √3/2, तो ऊपर √3/2 चाहिए, तो इसलिए √3/2 से हमने ऊपर तो मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी डिवाइड कर देता हूँ मैं 1/√3/2. तो इसके जगह क्या आ जाएगा साइन ऑफ √3/2t. ओके, तो ये देखिए ये फार्मूला आ गया 1/√3/2 और साइन ऑफ √3/2t. लेकिन यहाँ s नहीं है, s की जगह क्या है s प्लस 1/2 होल स्क्वायर है. तो यहाँ पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगी है e⁻⁻1/2t लिखोगे, राइट. इसे हम कैसे लिखते हैं क्योंकि s प्लस 2 है तो उसे पहले माइनस की फॉर्म में लिखो s माइनस -1/2. तो s माइनस जो टर्म है ये आएगी e की पावर में t का कोफिशिएंट, तो e की पावर में t का कोफिशिएंट आएगा -1/2.
So minus 1 by 2t into this one. So you get Laplace inverse of this one. In the same manner यहाँ पर भी सेकेंड टर्म में क्या है हमारे पास, s माइनस 1 बाई टू स्क्वायर प्लस 3 बाई रूट 3 बाई टू का स्क्वायर, ये सोच लो रूट 3 बाई टू होल स्क्वायर है ये। तो लेकिन रूट 3 बाई टू अगर मेरा ऊपर भी होता तो हमने ऊपर भी रूट 3 बाई टू से मल्टीप्लाई किया और नीचे डिवाइड कर दिया। तो रूट 3 बाई टू डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस रूट 3 बाई टू स्क्वायर, तो किसका हो गया ये फार्मूला, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसी का हो गया साइन ए टी का। तो यहाँ पर ये देखिए साइन ऑफ रूट 3 बाई टू टी और मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड किया था 1 बाई रूट 3 बाई टू, ये रहा। लेकिन एस की जगह एस माइनस 1 बाई टू है, तो माइनस के बाद जो है वो ई की पावर में टी का कोफिशिएंट होगा। तो ई की पावर में टी का कोफिशिएंट क्या है 1 बाई टू, ई रेज़्ड पावर 1 बाई टू टी। ओके, इन दिस वे विल फाइंड आउट द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिस वन। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपके टर्म आएगी दैट विल बी दिस वन। ओके, जो कॉमन है साइन रूट 3 बाई टू कॉमन लिया, ये आ गया। लेकिन ई रेज़्ड पावर माइनस टी बाई टू माइनस ई रेज़्ड पावर माइनस टी बाई टू, ये क्या है साइन हाइपरबोलिक टी बाई टू है, बिकॉज यू नो दैट ई रेज़्ड पावर माइनस टी माइनस ई रेज़्ड पावर टी माइनस यहाँ पर ये कभी का ये प्लस टी बाई टू है। ओके, माइनस ई रेज़्ड पावर टी डिवाइड बाई टू, ये होता है आपका साइन हाइपरबोलिक। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से 2 से कर दिया, तो ओवर हियर यू विल गेट दिस वन। ओके, नाउ इन द सिमिलर मैनर यू हैव टू चेक द फोर्थ वन। लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने इतने टर्म्स का, तो हम क्या करेंगे लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस वन, व्हाट इट विल बी, दैट विल बी लाप्लास इनवर्स ऑफ द फर्स्ट टर्म माइनस लाप्लास इनवर्स ऑफ द सेकंड टर्म प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ द थर्ड टर्म। इन दिस वे यू हैव टू डू जब कई सारी टर्म्स आ जाएगी। सो पहले जो फर्स्ट टर्म है उसका इंडिविजुअल सॉल्व कर लीजिए, जैसे अभी हमने ऊपर किया है। ओके, तो हम यही करेंगे, लाप्लास इनवर्स ऑफ फर्स्ट टर्म हम करेंगे। तो हमने इसे क्या किया है, इसे परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, जैसे अभी तरीका ऊपर लगाया उसी को लगा के परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। एस का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, एस का कोफिशिएंट को हाफ कीजिए, क्या आएगा 2, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 4 जोड़िए 4 घटाइए। जब 4 आप ऐड करोगे इसमें तो उसे तो ले लीजिए इसके साथ। ओके, तो बन गया एस प्लस 2 होल स्क्वायर, और जो माइनस 4 है उसे 13 के साथ लो, 13 माइनस 4 हो गया 9, तो प्लस में 9 अलग लिख दिया। ओके, तो ये फार्मूला क्या बन गया आपके पास, ये बना है 9 को लिख दो 3 का स्क्वायर, से बन गया 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है, तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दो, तो बन गया आपके पास 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। किसका फार्मूला है ये, साइन 3t का। तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा साइन 3t, लेकिन एस की जगह क्या है एस माइनस माइनस 2 है। ओके, तो ई रेज़्ड टू पावर टी का ऑप्शन होगा -2, ई रेज़्ड टू पावर -2t, और जो डिवाइड किया था 3 वो ये रहा, तो मैं 1/3 इंटू ई रेज़्ड टू पावर -2t इंटू साइन 3t। ओके, इन दिस वे लाप्लास इनवर्स ऑफ द सेकेंड टर्म, फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, एस का कोफिशिएंट 1 है, इसका हाफ कीजिए, इसका हाफ क्या आएगा आपके पास 4, 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, तो 16 आपने ऐड करना है, इसमें 16 ऐड करना है और 16 सब्ट्रैक्ट करना है। जब 16 को ऐड करोगे उसे तो इसके साथ ले लो, तो ये बन गया s प्लस 4 होल स्क्वायर, और -16 को 97 के साथ लो, 97 माइनस 16 क्या आएगा 81, राइट। तो ये फार्मूला बन गया हमारे पास s प्लस 4 अपॉन s प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस ई से 81 को लिख दो 9 स्क्वायर। तो ये किसका फार्मूला बना, s प्लस 4 मत सोचो, इसे सोचो s है ये। तो फिलहाल के लिए अगर मैं इसे s कंसिडर करता हूँ तो s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा कोस 90, तो इसका लाप्लास इनवर्स है कोस 90। ओके, तो हमने लिख दिया कोस 90, लेकिन s की जगह क्या है s प्लस 4, तो s प्लस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, s प्लस 4 इज s माइनस -4। तो जो s के माइनस के बाद जो टर्म है दैट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ ई रेज़्ड टू पावर t का कोफिशिएंट होगा ये, तो e की पावर t का कोफिशिएंट क्या है -4, सो विल राइट डाउन हियर ई रेज़्ड टू पावर -4t। सिमिलरली जो लास्ट पार्ट है उसका लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट कीजिए, दैट विल बी दिस वन। लाप्लास इनवर्स ऑफ, हमने क्या किया, नीचे जब परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो बनेगा s माइनस 2 होल स्क्वायर, यू ट्राई बाय योर ओन, यू विल गेट s माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 25 को लिख दो 5 स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे s माइनस 2 है, ऊपर केवल s प्लस 2 है, तो हम -2 बना लेते हैं। ऊपर कैसे -2 बनाएंगे, -2 कर दीजिए प्लस 2 कर दीजिए, s -2 को तो एक साथ ले लो और 2 और 2 4 अलग लिख दिया हमने, राइट। तो ये अलग अलग हो गया, लाप्लास इनवर्स ऑफ s माइनस 2 अपॉन दैट टर्म
प्लस 4 लाप्लास इनवर्स ऑफ 4 अपॉन दैट टर्म। ओके, तो 4 कांस्टेंट है टेकन आउटसाइड, सो इसका लाप्लास इनवर्स क्या होगा, ये क्या कंसीडर करो, एस है, एस अपॉन एस के प्लस 5 स्क्वायर क्या होगा, कोस 5t, लेकिन एस की जगह एस माइनस 2 है तो इसलिए ई रेस्ट पावर 2t, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, एंड ओवर हियर आल्सो 4 इंटू व्हाट इज दिस वन, एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर है, तो अगर ऊपर भी 5 हो तो मेरे बाद फार्मूला बन जाएगा साइन 5t का, लाप्लास इनवर्स इसका क्या आएगा, साइन 5t। तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 से डिवाइड भी करो, तो मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, राइट। सो इट विल बी, फार्मूला किसका आ गया, साइन 5t का ये, और क्या आ गया 4/5 साइन 5t, लेकिन एस की जगह क्या है, एस माइनस 2 है, इसलिए ई रेस्ट पावर 2t बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, सो इन दिस वे विल गेट द लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन। तो उन्हें सभी को कंबाइन करके लिख दीजिए, लाप्लास इनवर्स दिस इज दिस वन, इसका ये आया था मेरा, और इसका आपका बाकी ये बचा हुआ आ गया। सो इन दिस वे विल गेट द लाप्लास इनवर्स ऑफ। सो नेक्स्ट वन इज, there are some other method to find out the inverse Laplace transform. So what we do here, just check that अगर लाप्लास इनवर्स मेरा एफ एस का क्या है, एफ टी है, तब लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस माइनस ए का क्या होगा, ई रेज टू पावर ए टी इंटू लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस, ये होगा। ओके, सो लेट अस प्रूव दैट, इसी को बोलते हैं हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी किसकी है, ये इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, so we start with this one, Laplace inverse fs क्या है मेरा, ft, it can be written as fs will be the Laplace transform of ft, right। अगर Laplace inverse मेरा fs का ft है तो Laplace of ft क्या होगा मेरा fs। ओके, तो अगर f of, अब अगर इस ft को मैं e रेज़ टू पावर at से मल्टीप्लाई कर दूं तो यू नो द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जहाँ पर एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेरा एफ एस है तो एस की जगह क्या आ जाएगा, एस माइनस ए, तो एफ ऑफ एस माइनस ए आ जाएगा। ओके, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इंटू ई रेज़ टू पावर ए टी क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एस माइनस ए, राइट। अब लाप्लास इनवर्स लीजिए दोनों तरफ, तो ये क्या आ जाएगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ, इसके बाद लिखोगे लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस माइनस ए विल बी द ई रेज़ टू पावर ए टी इंटू एफ टी, राइट। सो यू विल गेट ओवर हियर व्हाट इज एफ टी, एफ टी की वैल्यू हमें पता है, एफ टी की वैल्यू क्या है मेरी, लाप्लास इनवर्स एफ एस, तो यहाँ पर एफ टी की जगह लिख दिया लाप्लास इनवर्स एफ एस। सो यू विल गेट द लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस माइनस ए विल बी इक्वल टू ई रेज़ टू पावर ए टी इंटू लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस। ओके, सो ये मेरी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बनेगी किसकी, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। नाउ वन मोर थिंग यू रिमेंबर हियर, अगर लाप्लास इनवर्स मेरा एफ एस का एफ टी है तो लाप्लास इनवर्स ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस, ये किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ टी माइनस ए, अगर ये एफ टी है तो स्मॉल एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए, लेकिन यू ऑफ टी माइनस ए मेरा क्या है यहाँ पर, दिस इज द स्टेप फंक्शन। ओके, एंड ए इज पॉजिटिव हियर, राइट। सो दिस फार्मूला आल्सो यू हैव टू रिमेंबर, अगर लाप्लास इनवर्स एफ एस एफ टी है तो लाप्लास इनवर्स ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस क्या होगा, एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए, राइट। द सेकंड थ्योरम इज हियर, राइट। what is says, it says if Laplace inverse of fh is ft and f0 is equal to 0 then Laplace inverse of s into fs, अगर यही fs s से मल्टीप्लाई हो जाता है तब उसका लाप्लास इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो जो fs का मेरा लाप्लास इनवर्स आया था ft उसका डेरिवेटिव कर दीजिए, कितना डेरिवेटिव करिए, जितनी s की पावर होगी, तो 1 पावर है तो 1 पावर डेरिवेटिव लेके d बाई डी टी ऑफ ft, राइट। सो वी गॉट दैट, अगर एफ एस का लाप्लास इनवर्स मेरा एफ टी है और एंड एफ जीरो की वैल्यू 0 है, तब अगर ये एफ एस मेरा एस से मल्टीप्लाई हो जाता है तो हम एफ एस का जो लाप्लास इनवर्स आया था एफ टी उसका हम डेरिवेटिव करेंगे कितनी बार, जितनी मेरी एस की पावर है, एफ एस के साथ मल्टीप्लाई में जो है एस, इसकी पावर 1 है तो ए की बार डेरिवेटिव करेंगे, राइट। सो लेट अस सी द प्रूफ ऑफ इट। वी नो दैट द लाप्लास इनवर्स ऑफ लाप्लास ऑफ एफ डैश टी क्या होता था, यू नो द फार्मूला s इंटू एफ एस माइनस एफ जीरो, लेकिन एफ जीरो की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पर 0 है, तो वो वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आ गया एस एफ एस, तो लाप्लास ऑफ एफ डैश टी आ गया एस एफ एस। ओके,
ये आ गया लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इक्वल टू एफ एस एस एफ एस। तो एफ डैश टी की वैल्यू क्या आएगी, लाप्लास इनवर्स ऑफ एस एफ एस, राइट। नाउ what you will say, Laplace inverse of SFS, you can check that this is equal to f dash t। तो ये तो हमने प्रूफ करना था। f dash t का मीनिंग क्या है, d by dt of ft, राइट। इसी को रीराइट करके हमने ये लिख दिया है। सो वी गॉट द प्रूफ, Laplace inverse of SFS will be d by dt of ft। अगर इसी को मैं जनरलाइज करता हूँ, सो फॉर द जनरलाइजेशन अगर हम nth डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखते हैं, सो यू नो द फार्मूला, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ dn by dtn of ft मीन्स nth डेरिवेटिव ऑफ ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, हमें फार्मूला पता है, s रेज टू पावर n इंटू एफ एस माइनस एस रेज टू पावर n माइनस वन एफ जीरो माइनस एस रेज टू पावर n माइनस टू एफ डैश जीरो माइनस डॉट 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 एस रेज टू पावर जीरो इंटू एफ n माइनस वन जीरो, राइट। इट विल बी देयर, बट एफ जीरो की वैल्यू क्या है मेरी, जीरो। तो अगर मैं ये एज्यूम करता हूँ कि एफ जीरो एफ डैश जीरो एफ डबल डैश जीरो एफ की पावर n माइनस वन जीरो, ये सारी वैल्यू अगर मेरी जीरो आती है तो ये टर्म तो सारी जीरो बन जाएगी, और यहाँ पर बचेगा एस रेज टू पावर n इंटू एफ एस, और ये क्या आ जाएगा मेरा, लाप्लास ऑफ डी एन पावर डी टी एन ऑफ एफ टी, ये आएगा। ओके, तो मैं कहूँगा लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस वन एस रेज टू पावर n इंटू एफ एस, लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस वन क्या आ जाएगा मेरे पास, डी एन बाई डी टी एन ऑफ एफ टी। तो मेरे पास ये फार्मूला बन जाएगा कि हमारे पास एफ एस का पहले लाप्लास इनवर्स निकालो, क्या आ जाएगा, एफ टी आ जाएगा, और एस की पावर जितनी है मेरी यहाँ पर उतने ही टाइम्स इस एफ टी का डेरिवेटिव हो जाएगा। ओके, सो विल गेट दिस वन। तो ये लाप्लास ऑफ दिस मेरा ये आया था, तो लाप्लास इनवर्स अगर मैं लेता हूँ इसका तो वो क्या आ जाएगा, डी एन बाई डी टी एन ऑफ एफ टी। ओके, सो वी गॉट दिस फार्मूला। एफ एस का पहले लाप्लास इनवर्स निकालो, क्या आएगा, एफ टी, और जितने एस की पावर है यहाँ पे लेफ्ट साइड में उतने टाइम्स उसका डेरिवेटिव हो जाएगा एफ टी का। सो वी गॉट दिस फार्मूला। ओके, द नेक्स्ट फार्मूलाज we will discuss in the next class. Thank you very much, students.